Today we continue our class 9 CBSE subject of continue कर mathematics chapter number 2 polynomial. We continue exercise 2.5 question number 12. What is question number 12? Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1/2 times x plus y plus z in another bracket x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Once again we check the problem. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz 1/2 times x plus y plus z x minus y whole square y plus z whole square plus z minus x whole square. Then we verify any problem. You can take right hand side and try to make the left hand side, or sometimes you take left hand side then you solve right hand side. अब जब भी ये वेरीफाई का प्रॉब्लम आता है तो आपको एक चीज ध्यान से करना है कि क्या ध्यान से करना है कि जो भी साइड आपको इजी है उसको प्रूव करके लाके दिखाना है, और जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है या लेंथी लगता है उसको सॉल्व करना है. लेंथी साइड को सीधे आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड यूज सॉल्व राइट हैंड साइड 1/2 times x plus y plus z in second bracket x minus y whole square y minus z whole square z minus x whole square. Which identity use here we कौन सी identity यूज करेंगे? a minus b whole square बराबर then 1/2 times x plus y plus z in second bracket x square minus 2xy plus y square in that y square minus 2yz plus z square z square minus twice zx plus x square. ठीक है, ये प्रॉब्लम को केवल ऑप्शन कर लीजिए आप x minus y whole square x square minus twice xy plus y square. Okay, then minus twice yz z square then. Okay, then we will continue there. इसको आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं. कंटिन्यू करने का आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सॉल्व करते जाना है राइट हैंड साइड, और सॉल्व करते करते क्या करते जाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके आना है. सॉल्व कीजिए मतलब नीचे नेसेसरी टू सॉल्व वेरी इजी 1/2 x plus y plus z listen x square plus x square twice x square. Okay, y square plus y square 2y square z square plus z square here 2z square plus twice z square minus twice xy minus twice yz minus twice zx. Listen carefully, watch. X square plus x square twice x square y square plus y square twice y square z square plus z square twice z square minus twice xy minus twice yz minus twice zx. Taking 2 in common in each term 1/2 x plus y x plus y plus z taking 2 common x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. The 2 get cancel हो गया. What is the meaning? That is x plus y plus z second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Okay, this is the expansion of the formula. कौन सा formula expansion है ये? a plus b plus c a square b square c square
माइनस ए बी सी के बराबर बोले आपने। देयरफॉर अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड। चाहे तो आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी यूज हियर, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी यूज हियर, a cube plus b cube plus c cube minus thrice ab c is equal to, क्या लिखते हैं आप, a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये जो आइडेंटिटी थी आप इस आइडेंटिटी को लेके आपने सॉल्व कर किया यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, तो ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, बराबर बोले हमने, यू विल कंटिन्यू दैट a क्यूब y क्यूब z क्यूब। ओके, a क्यूब b क्यूब c क्यूब थ्राइस x y z a प्लस b प्लस c। अब आपके पास था a प्लस y प्लस z a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc, दैट इज नथिंग बट योर, ये आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। हो गया, यानी आपने राइट हैंड साइड लिए और सॉल्व करते करते क्या ला लिया आपने, यू विल कंटिन्यू द लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS, या फिर आप लिख सकते हैं हेंस, हेंस क्या लिखेंगे अपन, हेंस राइट डाउन LHS इज इक्वल टू RHS। क्या आपका LHS, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस थ्राइस x y z इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z सेकंड ब्रैकेट x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। यानी आपने क्या कर दिया इस प्रॉब्लम में, ये जो आपको दिया था आपने राइट हैंड साइड लिया, सॉल्व करते करते LHS ला दिया और अब हेंस वेरीफाई, इस तरह से आपने क्या कर दिया, उसको वेरीफाई कर दिया। यानी जब भी आपको वेरीफाई का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो भी आपको इजी जाता है वो लाने की कोशिश कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 12, that is question number 12। what is the question number 12 में देखिए क्या हो रहा है, if 12 में खत्म हो गया, आपका आगे क्वेश्चन नंबर 13 बराबर, if x plus y plus z is equal to 0, okay, show that क्या शो करके दिखाना आपको, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स x y z। ओके, यहाँ पर आपको सिंपली सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको आगे चलना। ओके, क्या करेंगे आप, देखिए सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन टू यू, x plus y plus z is equal to 0, now it is given to you। suppose take right hand, x plus y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, z को राइट हैंड साइड में लेके, क्या हो जाएगा, x plus y is equal to minus z। कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1 क्या कर दिया आपने, x plus y plus z आपको दिया हुआ था, दिस इज गिवन टू यू, यू कैन शो दिस, x plus y plus z आपने लिया, राइट हैंड साइड में लिया, इसको मैं इधर से लिख रहा हूँ, x plus y is equal to minus z, taking q to both sides, taking q to both sides, दोनों साइड का क्यूब ले लीजिए, क्या हो जाएगा देखो, x क्यूब x plus y होल क्यूब is equal to minus z। ओके, आपको क्यूब क्यूब लिया आपने क्योंकि आपको क्यूब चाहिए था, x plus y होल क्यूब चाहिए था, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद में आपको क्या करना है, यू शुड बी फाइंड आउट द आंसर, यानी आपको शो करके दिखाना है। ओके, टेकिंग क्यूब टू बोथ टर्म। अब आपका फार्मूला क्या होता है, देखो
प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स क्या आता है x प्लस वाई दैट इज माइनस जेड। ओके, क्या करते हैं प्रेसिडेंट, आपका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आप चेंज करो, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपके पास, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्राइस ए बी ए प्लस बी, ये आपके पास आइडेंटिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी यूज करके यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ट्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। आगे ध्यान ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्राइस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ये अपनी आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी को आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ट्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस जेड, यहाँ पे लिख दिया आपने माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ओके, कहाँ से लिखा आपने, दैट इज यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्या होगा जी, फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड विल बी दिस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड। ओके, x क्यूब प्लस y क्यूब, जेड क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर चलेगा तो 3 टाइम्स xyz। देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस y प्लस z। देयरफॉर आप आंसर लिखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स xyz। यानी एक वाली प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब की वैल्यू दी है, तो आप उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। सेम आइडेंटिटीज आर यूजफुल टू अस, सेम आइडेंटिटी आपको क्या करके आएगी, यूज आएगी, क्या यूज आएगी, इन क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 यू विल कंटिन्यू दैट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं आप, यू विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको एक्चुअली क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है, क्यूब्स। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, find the values of following, नीचे दिए हुए इसकी क्या करो, वैल्यूज निकालो। फर्स्ट -12 प्लस 7 प्लस 5 क्यूब। ओके, ये आपके पास दिया हुआ है। अब आपके पास आइडेंटिटीज है, कौन सी आइडेंटिटी आपके पास, बराबर बोल रहे हैं आप, अभी अपने पढ़े इसके पहले, यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी को यूज है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो उसका आंसर क्या होता है, इज इक्वल टू थ्राइस a इंटू b इंटू c। ओके, पुट द वैल्यूज हियर, a b c की वैल्यू क्या दी, चेक करो, हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों आता है, क्योंकि हियर a प्लस b प्लस c कितना है, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, चेक करो, that is -12 plus 12 is equal to 0, यानी a plus b plus c की वैल्यू यदि 0 आता है, then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, थ्राइस abc। अभी इसके पहले का जो प्रॉब्लम था उसके एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभी आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, देखो क्या
प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए यानी -12, बी यानी 7 और सी बोले तो 5. ओके, देन 12 3 is -36 into 7 into 5 minus 7 6 is 42 का 2 कैरी का 4 7 3 is 21 and 4 25 into 5 5 2 is 10 का 0 कैरी का 1 बराबर 5 5 is 25 and 26 कैरी 2 5 2 is 10 and that is कितना रिमेनिंग का 2 10 and 2 12 ज्यादा आ गया 1260 विदाउट एक्चुअली. अपन यहाँ पे 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब निकाले क्या आपने नहीं निकाले. इन तीनों के क्यूब की आपने क्या कर दिए एडिशन कर दिए. तो आपको एडिशन करने के बाद इसका आंसर क्या मिला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c. ओके, तो आपका आंसर निकल गया -1260. अब आंसर करें -12 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब इज इक्वल टू -1260. ओके, इसी में अपने क्वेश्चन और रिमेनिंग बचा हुआ है. देन वी विल कंटिन्यू. तो कंटिन्यू करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 7. क्या है करो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब. ओके, अब आप कर क्या रहे हैं व्हाट कैन यू डू हियर यूज द आइडेंटिटी. यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे. विच आइडेंटिटी यूज यूजिंग आइडेंटिटी. अब फिर से मैं बता रहा हूँ ये आइडेंटिटी कब लागू होगी इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc. फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली कब जब इन तीनों के एडिशन 0 हो. चेक करो हियर 28 प्लस क्या है सेकंड में -15. ओके, यहाँ पे हियर a प्लस b प्लस c कितना है 28 -15 -13. ओके, कितना हो गया 28 15 -13 -20 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आप इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करेंगे. तो से 28 क्यूब -15 क्यूब देयरफॉर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a 28 b -15 c -13. ओके, 28 3 8 are 24 का 4 कैरी का 2 3 2 are 6 6 and 2 8 into -15 into -13. ओके, 15 4 are 60 0 कैरी 6 पहले माइनस से दे दिया 15 8 are 120 and 8 126 1260. ओके, into -13 साइन से आंसर पॉजिटिव 13 into 0 0 13 6 are 78 carry 7 13 2 are 26 and then 33 carry 3 13 1 are 13 13 and 3 61 3 1638 0. यानी इस तरह से आप इसका आंसर कितना निकालिए 131638 0. एक आइडिया हो गई. दैट इज नथिंग बट द देयरफॉर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी 16380. यानी आपने यहाँ पे क्या किया मैथमेटिक्स का यूज करके 28 का क्यूब 15 का क्यूब और 13 का क्यूब आपने नहीं निकाला. डायरेक्ट अपने आइडेंटिटी यूज की और आपने क्या किया आंसर निकाला. हियर वी विल कंटिन्यू. आज अपने दो न्यू आइडेंटिटी पढ़े. एक a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc. ठीक है, और एक कौन सी आइडेंटिटी पढ़े आपने जिसमें आपने वेरीफाई करके दिखाया है आइडेंटिटीज. ये दोनों प्रॉब्लम आप केयरफुली वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू
बाय.